Hello and welcome friends. Today we are discussing very important aspect on the UPSC preparation. We will be discussing about the mains answer writing and its evaluation. I am Sarthak Singh and I have cleared the UPSC Civil Services exam twice. I have got rank 393 in this current year's Civil Service exam 2024 and I have cleared CSE 22 with rank 584. So today we will be discussing about this aspect which is often ignored in the UPSC preparation and there is no right guidance for it. I am talking about answer writing and its evaluation. We know that to clear UPSC, mains is the crucial aspect that ensures our entry into the final list, the holy PDF as we call it. But the answer writing and its evaluation is most ignored part. And there is no one fixed solution available for it, or one fixed guidance is not available for it that we can use to evaluate our answers. We have brought for you the self-assessment report. Herein you will be able to check your own answers by yourself, and if you don't have the time, if you don't have the energy for it, you can delegate this task of checking your answers to your parents, to your brothers, to your sisters, to your friends. And if they also are unavailable for that, then you can always come to Kalam Academy, come to me, and we will be happy to help you. But here we will be presenting to you a self-assessment framework. So this is the document which is well researched and which will help you self-evaluate your answers. I will be discussing various parameters, and this self-assessment report for mains answer writing, it has been curated by the experience of toppers, and it has also helped a lot of toppers, as you can see them on the screen. So starting with the illustration about the description of the mains syllabus, the mains exam and what it consists of. So as the mains notification says, so as the UPSC notification tells us about mains is that the nature and standard of the questions would be that any well-educated person would be able to answer them without specialized study. So here without specialized study is an important keyword which ensures that we should not delve so deep onto the topics that we start to do research. हमें रिसर्च नहीं करनी, हमें किसी टॉपिक के ऊपर PhD नहीं करनी, हमें कोई बहुत नया इनोवेटिव जो है उसको उस इनोवेटिव आइडिया को ढूंढने के लिए अपनी बहुत ज्यादा एनर्जीज नहीं लगानी है. What we need to have is एक knowledgeable person का जो एक अवेयरनेस लेवल होता है, वेल एजुकेटेड पर्सन का जो लेवल होता है वो हमें अचीव करना है. Then we need to have general awareness on variety of subjects. यहाँ variety of subjects बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अगर किसी एक या दो सब्जेक्ट को अपनी ग्रिप बनाकर ये सोच रहे हैं कि आप यूपीएससी का मेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो माय फ्रेंड यू आर इन अ सीरियस प्रॉब्लम, बिकॉज यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम है वो 12 से 15 सब्जेक्ट्स को केटर करता है. मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, ऑल ऑफ यू आर अवेयर विद द सब्जेक्ट्स. सो ये सारी जो है इन सब सब्जेक्ट्स की जनरल अवेयरनेस हमारे में होनी चाहिए. Then it focuses on basic understanding of all the relevant issues, because all is the keyword here. All relevant issues means जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे वो आपने सारे अटेम्प्ट करने हैं ये बताने के लिए कि मुझे सारे जो है रेलेवेंट इश्यूज की समझ है, मुझे सारे रेलेवेंट इश्यूज के बारे में एक कंसिडरेबल अवेयरनेस है. इसलिए जरूरी होता है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना. आप वेरियस टॉपर स्टॉक में देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए मेंस एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस 20 के 20 क्वेश्चंस लिख के आते हैं लोग. तो उसका जो क्रक्स है वो यहीं से आता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन कहता है कि यू शुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन ऑल द रेलेवेंट इश्यूज एंड देयर वुड बी सर्टेन क्वालिटीज दैट वी हैव इन्फर्ड फ्रॉम द इंटरव्यू सिलेबस. जो पर्सनैलिटी टेस्ट का सिलेबस है उसमें से कुछ क्वालिटीज जो हैं वो आपकी जज हो जाएंगी मेंस आंसर लिखते समय. जैसे बैलेंस ऑफ जजमेंट एक क्वालिटी है जो कि इंटरव्यू के सिलेबस में लिखी गई है, लेकिन केस स्टडीज को, ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हुए और किसी एक पॉलिसी को क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हुए उसमें अगर आप देखेंगे तो क्रिटिकली इवैल्यूएट एक कीवर्ड यूज होता है, तो उसके जरिए आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि बैलेंस ऑफ जजमेंट आप दिखा पाए अपना. आपने किसी एक साइड की तरफ बायस नहीं हो जाना है, कोई एक साइड नहीं लेनी है, लेकिन आपने बैलेंस ऑफ जजमेंट रखना है और एक बैलेंस ऑफ जजमेंट रख के डिसीजन पे पहुंचना है. 4 मेंस के पेपर होते हैं जीएस के, विच कंसिस्ट ऑफ 1000 मार्क्स.
तो उसके लिए हम देखते हैं कि देयर इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल इश्यूज एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कोर इश्यूज रेलेवेंट टू सिविल सर्विसेज। तो एक तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास बहुत सारे इश्यूज की, और डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास जो कोर इश्यूज कंसर्निंग सिविल सर्विसेज हैं। जैसे मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं, 2023 के पेपर में एक क्वेश्चन था ब्लू एलईडी को लेकर। तो ब्लू एलईडी अब एक ऐसा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हम लोगों ने काफी डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ था जब वो वाला पेपर देखा था हम लोगों ने। तो उस टॉपिक की आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो आप एक बेसिक टाइप का आंसर उसके लिए लिख सकें आंसर एग्जाम हॉल में, क्योंकि आपको वहां मैनेज करना है। लेकिन यदि क्वेश्चन पॉवर्टी पे है, यदि क्वेश्चन अनएम्प्लॉयमेंट पे है मेंस एग्जाम में, तो वहां पे आपकी जो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये सारे इश्यूज जो हैं ये बहुत टाइम से न्यूज में है और ये क्लियरली मेंशन्ड है सिलेबस में, और इनकी तैयारी आपसे एक अच्छे आंसर की उम्मीद है इन वाले एरियाज में आपसे। इसलिए डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन सर्टेन इश्यूज एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन अदर काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स। So you will also be required to take a view on conflicting socio-economic goals. So जो socio-economic goals हैं इंडिया के, डिमांड्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके ऊपर आपको एक व्यू रखना पड़ेगा। और वो व्यू आपका कैसे अराइव होना चाहिए? वो व्यू आपको अराइव होना चाहिए बैलेंस ऑफ जजमेंट को इंक्लूड करने के बाद। आपने दोनों ही पक्षों को इवेल्युएट करना है, फिर जो आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग देश के लिए सबसे बेटर व्यू हो उसको आपने आंसर्स में लिखना है, और पर्सनैलिटी टेस्ट में उसी चीज को आपने आंसर्स में बोलना है। Then they are also checking your ability to analyze the critical powers of assimilation, clear and logical exposition। अब आप जो बोलना चाह रहे हैं आपने वही बोलना है और आपने वही लिखना है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में आपके लिखे हुए का जो इम्पैक्ट है वो बहुत लार्ज होने वाला है। इसलिए रिक्वायरमेंट है कि आप जो भी लिखें उसको क्लियर लिखें और लॉजिकल रीजनिंग के साथ लिखें, ताकि वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे कंट्री के लिए। तो इसलिए एग्जाम का रिक्वायरमेंट भी है कि क्रिटिकल पावर्स ऑफ असिमुलेशन होने चाहिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को आप यूजफुल तरीके से इस्तेमाल करके एक करेक्ट डिसीजन पे पहुंच सकें और क्लियरली और रैशनली और लॉजिकली उसको लिख सकें। तो ये भी क्वालिटीज जो है एनालिसिस में आती हैं, और ये क्वालिटीज इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट का जो हमारा सिलेबस है उसमें मेंशन्ड है। देन how will be the marks will be given? The marks will be given for the relevant, meaningful and second answers। तो आपने relevant answers लिखने हैं, meaningful answers लिखने हैं। केवल पेज भर देने के लिए आपको पेज नहीं भरना है, आपको जो पूछा गया है you have to address the demand of that question, उस तरीके से जवाब लिखना है। और second answers लिखने हैं, मतलब कम शब्दों में जो बहुत सारी बात कहने की जो कला है वो सीखने की जरूरत है आपको मेंस आंसर लिखते समय। आपके जो ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स दिखाई देंगे मेंस आंसर के जरिए, उसके भी मार्क्स हैं। देन यू विल आल्सो हैव मार्क्स फॉर डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप कितने डायमेंशंस एक क्वेश्चंस में खोल सकते हैं, आप कितनी इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेजेस कर सकते हैं क्वेश्चंस में, ये सारी डिटेल्स मैं डिस्कस करने वाला हूं, चाहे सार के और अगले आने वाले वीडियोज हो या अभी इस वीडियो में मैं आपको लाइव अपने आंसर कॉपी भी इवैल्यूएट करके दिखाऊंगा। ये समझने की जरूरत है कि क्या क्या पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है जो जिसपे यूपीएससी हमें जज करने वाला है, किस पे यूपीएससी हमें इवैल्यूएट करने वाला है। तो अगर हम वो चीजें ध्यान में रखकर अपने आंसर कॉपी का इवैल्यूएशन स्वयं करेंगे या किसी को करने को बोलेंगे, तो हम ये पाएंगे कि हम बेटर रिजल्ट्स ले पाएंगे, अपने मार्क्स इंक्रीज कर पाएंगे मेंस में। Then there are no marks for, or rather there are also negative marks for rather merely the information and memory। तो आप अगर कोई रटी हुई चीज लिखेंगे सिर्फ, जो एक इंफॉर्मेशन है या एक बड़ा ऑब्सक्योर सा डेटा है, वो आपने अगर याद कर लिया है तो सिर्फ वो लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको उस डेटा को अच्छी तरह अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। Then there will be no marks for superficial knowledge। तो जो आपकी सुपरफिशियल नॉलेज है जिसमें कोई डेप्थ नहीं है, उस चीज के भी मार्क्स जो है वो यूपीएससी नहीं देगा। देन देयर आर सर्टेन यूपीएससी इंस्ट्रक्शंस कि आपको मार्जिन्स के बाहर नहीं लिखना है, आपको वर्ड लिमिट के अंदर लिखना है। उस चीज को वॉयलेट करने के भी आपके जो मार्क्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे, इवन नेगेटिव मार्क्स या पेनल्टी मार्क्स भी दिए जा सकते हैं। एंड देन इन एडिशन टू अबव, स्पेशली फॉर जीएस पेपर 4 जो आपका एथिक्स का पेपर है, उसके अंदर हमारे पास स्कोप होता है कि हम अपने इंटेलेक्चुअल और मॉरल इंटीग्रिटी को प्रस्तुत करें, अपने वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट को दिखाएं, while suggesting the solutions
that how would a situation will be tackled in the medium term, in the long term, in the short term. ये सारी जो टर्म्स हैं, इतनी देरी के लिए आप सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं, वो डिपेंड करेंगी कि आपका कितना ज्यादा वैरायटी और डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको उसको कितने सारे डायमेंशन से आप टैकल करते हैं एक प्रॉब्लम को, वो वहां पे शोकेस होता है. Then social cohesion and leadership qualities will also be reflected in the way you answer your case studies, in the way you take decisions as a leader in the case study of ethics section B. वहां पे ये सारी क्वालिटीज जो है वो इवेल्युएट की जा सकती हैं. Then as we know, there would be 3 hours for general studies papers, 150 words for 10 markers, 250 words for 15 markers. आजकल यही जो है वो ट्रेंड है, जीएस के पेपर्स 1 2 3 4 इसी एस्पेक्ट में आ रहे हैं. Then there are certain penalty marks as well. Irrelevant matters अगर आप लिखते हैं तो आपको पेनल्टी मार्क्स दे दिए जाएंगे. यू डोंट हैव टू राइट irrelevant matters, irrelevant answers. ये हमने पहले ही बात कर ली है कि आपके आंसर्स जो हैं relevant, meaningful and succinct होने चाहिए. Then candidate should not write anything which may disclose their identity. आपको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने के लिए भी कोई भी सिंबल, कोई भी मार्क, कोई भी नाम, कुछ भी नहीं लिखना होता है आंसर शीट पे. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पेनल्टी मार्क्स भी दिए जा सकते हैं. Then you cannot make an indirect or direct appeal to the examiner. जो कॉपी चेक कर रहा है, आप उस एग्जामिनर से कोई अपील नहीं कर सकते. Then you should not be writing in the bad or illegible handwriting. अगर कुछ दिखेगा ही नहीं एग्जामिनर को, कुछ समझ ही नहीं आएगा हैंडराइटिंग में से, तो how would the copy of mains would be evaluated? तो इसलिए आपको बैड और illegible हैंडराइटिंग में नहीं लिखना है. Then all other instructions that are mentioned on your mains answer copy. आप जो मेंस आंसर कॉपी को देखेंगे उसमें भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी. उन सारे इंस्ट्रक्शंस को भी आपको इग्नोर नहीं करना है. और आपको अपना क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट का जो फर्स्ट पेज है, जहां पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना होता है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना होता है, वो आपको क्लियरली भरना है. तो ये सारी चीजें हम ध्यान रखेंगे व्हाइल वी अटेम्प्ट द मेंस एग्जाम. नाउ कमिंग टू द एक्चुअल असेसमेंट और मार्किंग. तो कुछ पैरामीटर्स हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं क्वालिटेटिव, और कुछ पैरामीटर्स हमने फाइंड आउट किए क्वांटिटेटिव. सो यहां पर क्वालिटेटिव पैरामीटर्स मेंशन्ड हैं, जो आप अपने लिस्ट में देख सकते हैं. ये 5 जो पैरामीटर्स मेंशन्ड है आपके सामने, ये है क्वालिटेटिव पैरामीटर्स. इसके अलावा नेक्स्ट पेज पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स को भी. ठीक है. सो फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग द क्वालिटेटिव पैरामीटर्स, की क्वालिटी कैसी है, उसके बेसिस पे इवेल्युएट करेंगे आपके आंसर्स को. मैं एक आंसर आपको अभी इवेल्युएट करके दिखाऊंगा. और एक और पैरामीटर्स होते हैं जो कि क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं, जो कि क्वांटिटी मेजर करते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन लिखा है या नहीं लिखा, कंक्लूजन लिखा है या नहीं लिखा, पॉइंट्स कितने लिखे हैं, और उनको कैसे इवेल्युएट करना, वो सारी चीजें मैं अभी आपको आगे बताऊंगा. सो क्वालिटेटिव एनालिसिस का जो है, क्वालिटी देखने के लिए पहला पैरामीटर है बेसिक एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग. जैसे मैंने बताया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उन क्वेश्चंस में जो ऑब्सक्योर टॉपिक्स हैं, रेयर टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं पढ़े हुए, लेकिन डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन टॉपिक्स में जो आपने अच्छी तरह पढ़े होने चाहिए अगर आपने सीरियसली मेंस के लिए प्रिपेयर किया है. तो जैसा कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आपको कोर ऑफ द क्वेश्चन की सेंट्रल थीम जो है वो आइडेंटिफाई करनी है. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक फीचर जो है उस थीम का, वो आपको पकड़ना है. कि जैसे अगर प्रीएम्बल की बात की जा रही है, तो आपको ये जानना है कि प्रीएम्बल कब कब अमेंड किया गया है, प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में क्या लिंकेजेस हैं, और क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अलग से पास किया गया था बाय सेपरेट बिल और सेपरेट रेजोल्यूशन. ये चीज आपको लर्न करनी है. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दैट थीम, कि प्रीएम्बल का क्या इंपॉर्टेंस है. क्या प्रीएम्बल किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी को पावर देता है कोई चीज करने की, और प्रीएम्बल की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. देन वी नीड टू हैव जनरल अवेयरनेस ऑफ अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट एंड डायमेंशन. तो आपको उस टॉपिक के बारे में, उस थीम के बारे में जो क्वेश्चन में पूछी जा रही है, उसके बारे में एक जनरल अवेयरनेस, एंड हाउ इज इट अफेक्टिंग वेरियस अदर डायमेंशंस ऑफ लाइफ, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है. ये पार्ट है आपका बेसिक एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर. नेक्स्ट वी हैव ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स. जैसे आपके क्वेश्चन की अप्रोच होनी चाहिए, वो शो करना चाहिए कि दैट यू आर वेल एजुकेटेड, यू आर अ वेल एजुकेटेड यूथ ऑफ इंडिया. देन
You will use paper specific keywords, phrases, terminologies. पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स है, जैसे अगर गवर्नेंस का क्वेश्चन है, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, ये सारे कीवर्ड्स जो हैं, ई गवर्नेंस, सोशल ऑडिट, स्मार्ट गवर्नेंस, ये सारी चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी, तो वो आप पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स में फिट कर पाएंगे अपने आंसर्स को, और वो आपके आंसर्स को और शाइन देता है और इंक्रीज करता है मेंस के मार्क्स को। जो लोग रिपीटेडली मेंस क्लियर करते हैं, इवन मैंने भी जब 3 बार मेंस क्लियर करा है, तो इन सब चीजों की यूटिलाइज किया है, इन सब स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया है। अभी मैं आपको आंसर चेक करके भी दिखाऊंगा कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देन यू विल ऑल्सो राइट थिंकर और थ्योरी रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज सम इंटरनेशनल रिलेशन क्वेश्चन। तो इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन में अगर नेबरहुड का क्वेश्चन है, जैसे इंडिया और भूटान के लिए, या इंडिया और नेपाल के लिए कहा जाता है कुछ, या इंडिया और चाइना के लिए कुछ कहा जाता है अगर किसी थिंकर या थ्योरी के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा, तो वो सारी चीजें आपको अपने प्रिपरेशन में उसके अलग से नोट्स बनाने हैं मेंस के लिए, और अपने मेंस के रजिस्टर में उन चीजों को लिखना है और आंसर हॉल में लिख के आना है। नेक्स्ट वी हैव इज चोको चिप्स। चोको चिप्स यहाँ पे एक एब्रिविएशन है जो कि वैल्यू एडिड मटेरियल है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, रिपोर्ट है किसी कम्युनिटी का, किसी कमेटी का रिपोर्ट है, किसी कमीशन के रिकमेंडेशंस हैं, जो भी चीज आपके आंसर को इनहेंस करे। जैसे चोको चिप्स, जैसे हम समझते हैं कि वो आंसर को इनहेंस करने वाली चीज है, उस चीज को आपने अपने आंसर्स में जरूर डालना है, वही आपको मार्क्स ज्यादा देगी। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, किसी कंट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आप हेल्थ केयर सिस्टम लिखेंगे तो स्वीडन की बेस्ट प्रैक्टिसेस आप लिख सकते हैं, और भी किसी कंट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपको पता हो। जैसे अगर एजुकेशन का क्वेश्चन है तो उसके लिए आप सिंगापुर की बेस्ट प्रैक्टिसेस लिख सकते हैं, फिनलैंड की बेस्ट प्रैक्टिसेस लिख सकते हैं एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प और इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है चोको चिप्स के तरीके से है, वो हम अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी समझेंगे, और जब आप फेस टू फेस इवैल्यूएशन के लिए आएंगे तो भी मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि किस आंसर को आप इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। देन आपको अपनी स्ट्रक्चरल थिंकिंग दिखानी पड़ेगी। सीक्वेंस में होनी चाहिए आपकी सब हेडिंग्स, जो आंसर लिखेंगे 10 नंबर का हो चाहे 15 नंबर का हो, वो आपका सब हेडिंग्स में होना चाहिए। विदाउट सब हेडिंग्स के आंसर्स में बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो हमने टॉपर्स कॉपी में भी देखा है, इवन मैंने भी यूज किया है कि सब हेडिंग्स आपकी होनी चाहिए। एंड ये सब हेडिंग्स जो है, दीज विल बी फाइंड आउट फ्रॉम द थीम ऑफ द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के थीम में से ही ये चीजें सब हेडिंग्स निकालनी पड़ेंगी। थर्ड पॉइंट वी हैव इज द एबिलिटी टू एनालाइज। जो इंटरोगेटिव वर्ड हो, जैसे डिस्कस, एग्जामिन, क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट, इन सारे इंटरोगेटिव वर्ड्स को आपको जस्टिस करना है और आपको एनालाइज करना है जो भी आपको कमांड दिया गया है उस कमांड के जरिए। इससे आपका क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमुलेशन दिखाई देगा और क्लैरिटी ऑफ थॉट दिखाई देगा कि आप कितना क्लियर सोच पाते हैं और कितना क्लियर लिख पाते हैं। उसी चीज के मार्क्स हैं। द ब्रीविटी ऑफ कंटेंट, सकिंट कंटेंट होना चाहिए, रेलेवेंट, मीनिंगफुल और सकिंट कंटेंट होना चाहिए, उस चीज के मार्क्स ज्यादा होते हैं। इवन आप लोग अगर यूपीएससी का मेंस आंसर शीट देखेंगे, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट देखेंगे, तो उस क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट पे भी आपको लिखा हुआ मिलता है दैट कंटेंट ऑफ द आंसर इज मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स लेंथ। सो हमें कंटेंट पे फोकस करना है लेंथ से ज्यादा। आप शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स रिगार्डिंग एनी टेक्नोलॉजी और रिगार्डिंग एनी पॉलिसी। तो आप एनालाइज जितना ज्यादा करेंगे एक चीज को मेंस में लिखते समय, उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। Then you will support your argument by facts, case studies, best practices around the world, और जो भी डेटा पॉइंट्स आपको याद हैं उन चीजों के जरिए आप अपना एनालाइज करेंगे आंसर्स को। जैसे अगर आप सोशल ऑडिट की बात करते हैं, तो अगर सोशल ऑडिट आपने क्वेश्चन में पूछा गया है, तो सोशल ऑडिट के क्वेश्चन में मैं समझता हूं कि आपको मेघालय का जो सोशल ऑडिट लॉ है उसको आपको जरूर लिखना चाहिए कि वो एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो एक पर्टिकुलर इंडियन स्टेट में की जा रही है, और क्या हम इसको बाकी स्टेट्स में भी एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके आंसर्स को स्टैंड आउट करेंगी, और आप जो रिपीटेडली अगर कोई मेंस में रुक रहा है या मेंस में मार्क्स नहीं आ रहे, तो ये सारी चीजें इंश्योर करेंगी कि मेंस में मार्क्स ज्यादा आ पाए, इंप्रूव हो पाए। देन वी कम ऑन टू द फोर्थ क्वालिटेटिव पैरामीटर, जो कि आपको रेलेवेंट, मीनिंग एंड सेकंड आंसर्स लिखने हैं, विद इन द वर्ड लिमिट लिखने हैं, विद इन द टाइम लिमिट लिखने हैं। देन यू हैव टू राइट टू द पॉइंट, क्रिस्प आंसर्स। आपको इधर उधर की बात नहीं करनी है, क्रिस्प आंसर लिखना है सीधा।
जैसे 3 इडियट्स में वो डायलॉग है, जब आमिर खान साहब उनको अपने जो टीचर होते हैं कॉलेज में उनको समझाना चाहते हैं कुछ, तो वो बुक्स की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन बोल देते हैं टेक्निकल टर्म्स में। वो बोलना सिर्फ बुक्स चाहते हैं कि मैं किताबें लेने आया हूं, लेकिन वो बुक्स की बहुत बड़ी डेफिनेशन बोल देते हैं। तो उनके प्रोफेसर बोलते हैं कि अरे भाई कहना क्या चाहते हो? तो दिस कहना क्या चाहते हो हैज टू बी योर आंसर। यू हैव टू हिट डायरेक्ट टू द बुल्स आई। अगर आपको 2 लाइन की इंफॉर्मेशन पता है तो आप 2 लाइन की इंफॉर्मेशन लिखिए, आप बीटिंग अराउंड द बुश मेंस के पेपर के अंदर नहीं करेंगे। तो आपने सीधा लिखना है कि आप कहना क्या चाहते हैं, वो आपके आंसर शीट में दिखाई देना चाहिए। देन यू विल हैव टू राइट स्टैंडर्ड्स एंड पॉपुलर फैक्ट्स एंड फिगर्स। कोई ऑब्सक्योर रिपोर्ट आपने नहीं ढूंढ लेनी है किसी एक रैंडम न्यूज आर्टिकल में से, आपने वो चीजें, वो फैक्ट फिगर्स लेने हैं जो वाइडली अवेलेबल हैं, जो वाइडली लोग जानते हैं, जो एक पब्लिश्ड रिपोर्ट्स हैं जो वाइडली पढ़ी जाती हैं, जैसे पंची कमीशन का रिपोर्ट है, सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट है, सेकंड एआरसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का रिपोर्ट है। ये सारे रिपोर्ट्स में से आप डेटा पॉइंट्स ले सकते हैं। देन यू विल हैव टू अपडेट योर नॉलेज विद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जैसा हम जानते हैं जरूरी है यूपीएससी मेंस एग्जाम के लिए, और काफी बार आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को और ज्यादा बेटर पॉलिश वे में लिखने के लिए करंट अफेयर्स से। तो ये चीज आपने इंक्लूड करनी है अपने तैयारी में। देन यू विल हैव टू डायरेक्टली लिंक योर आंसर्स विद अ सेंट्रल थीम। तो जैसे ही आपकी जो भी आप आंसर लिखेंगे वो आप थीम के साथ इंक्लूड करेंगे, आप थीम के साथ उसको टच करेंगे। आपका आंसर जो है वो क्वेश्चन के लिए होना चाहिए। एक तरीका मैं आंसर्स को टू द पॉइंट रखने का एक तरीका मैं ये सोचता हूं कि अगर हम क्वेश्चन को हटा दें, अगर आप क्वेश्चन को हटा दें और आप सिर्फ आंसर पढ़ें और उस आंसर से आप अगर क्वेश्चन डिसाइफर कर सकें, अगर सिर्फ आंसर पढ़ के आप क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं या क्वेश्चन आप गेस कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो इस आंसर के जरिए बताया गया है, तो मैं समझता हूं कि वो एक बहुत रेलेवेंट, मीनिंगफुल और सेकेंड आंसर रहेगा, क्योंकि आपने सिर्फ आंसर पढ़ के क्वेश्चन गेस कर दिया। तो आप अपने आंसर्स में भी ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं कि आप आंसर्स पढ़िए और फिर सोचिए कि इसका क्या क्वेश्चन पूछा गया था, और जितना क्लोज आप इस प्रैक्टिस के होते जाएंगे क्वेश्चंस गेस करने के, तो आप उतना ज्यादा देखेंगे कि आप रेलेवेंट आंसर्स लिख रहे हैं, आप क्लोज टू द रिक्वायरमेंट आंसर लिख रहे हैं। देन वी हैव फिफ्थ पॉइंट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस की अवॉइडिंग द मेरली द रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी। आपने अपनी मेमोरी को ओवरलोड नहीं करना है। मैं देखता हूं मार्केट में बहुत सारे डेटा के बुकलेट्स घूम रहे हैं, जजमेंट्स के बुकलेट घूम रहे हैं, इतने मोटे मोटे बुकलेट हैं, वो सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं दैट इटसेल्फ बिकम्स अ सब्जेक्ट और अ बुक टू स्टडी। तो जब आप इतना सारा मेंस का डेटा पढ़ेंगे तो आप ओपिनियंस कब बनाएंगे, तो आप क्रिटिकली एनालाइज कब करेंगे चीजों को। सो माय पॉइंट हियर इज विद the limited knowledge that you have gained after clearing prelims or while the prelims preparation you were doing, you should use that information to write your mains answers, and that is the best kind of practice, that you use the available information with you into your mains answers rather than running behind a new information every other day. Then bombardment of information भी आपने नहीं करनी है कि आपने सिर्फ पहले 5 फैक्ट्स लिख दिए। अगर पॉवर्टी का क्वेश्चन आता है तो आपने एक लाइन से 5 फैक्ट्स लिख दिए एग्जामिनर के ऊपर, तो आपने ऐसा नहीं करना है। देन you need not have any specialized study as far as general studies papers are concerned, but you will have a honors level degree, honors level study for the optional subject, जो BA लेवल से थोड़ा ज्यादा एंड MA लेवल से थोड़ा कम होता है, जिसको हम BA ऑनर्स लेवल बोलते हैं। उस लेवल की रिक्वायरमेंट रहेगी आपसे ऑप्शनल पेपर्स में। You should write the points, you should have an opinion that are relevant for a career in civil services. तो सिविल सर्विसेज का करियर में जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रह सके, जो रेलेवेंट आपका व्यू पॉइंट रह सके, वो व्यू पॉइंट आपने पोर्ट्रे करना होता है अपना आंसर्स में। नाउ वी सी द CSE मेंस सिलेबस। So मेंस एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू असेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स। आपकी ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स देखे जाएंगे कि आप इंटेलेक्चुअली एक कैसे इंसान हैं। आंसर शीट के ऊपर आपने कैसी चीजें, कैसी बातें लिखी हुई हैं, कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट किया है, क्या वो आंसर इंटेलेक्चुअली डीप है, और डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी देखी जाएगी rather than the range of their information memory. So ये एक मेंस का सिलेबस है जो यूपीएससी नोटिफिकेशन से हमें पता चलता है।
उसको मद्देनजर रखते हुए ही हमने ये सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट का रिसर्च डॉक्यूमेंट बनाया है, जो कि बहुत असेंशियल रहने वाला है आपके मेंस के प्रिपरेशन में। तो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। द जनरल स्टडीज पेपर 1 to पेपर 4 वुड बी दैट अ वेल एजुकेटेड पर्सन वुड बी एबल टू आंसर्स। तो अगर आप वेल एजुकेटेड पर्सन है, आप अवेयर हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, तो आप उस जनरल स्टडीज के पेपर 1 से पेपर 4 तक को आंसर कर पाएंगे विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी। सो जनरल अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। तो एक दो सब्जेक्ट्स पे आपको महारत हासिल करने की जगह वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स में अपना इंटरेस्ट रखना चाहिए। देन questions are likely to test the basic understanding of all relevant issues, ability to analyze and take a view on conflicting socio-economic goals, objectives and demands. So आपको एक ability to analyze रखनी पड़ेगी और एक व्यू रखना पड़ेगा, एक डिसीजन पे आपको पहुंचना पड़ेगा कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स ऑन वेरियस सोशियो इकोनॉमिक गोल्स। कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे एड्रेस करेंगे, तो आपके पास उसके लिए 5-6 पॉइंट्स होने चाहिए कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को ऐसे एड्रेस करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये रिक्वायरमेंट है मेंस एग्जाम की और इसी डायरेक्शन में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। Then the scope of the optional subjects as we have discussed would be a level of honors degree, जो कि BA से हायर होगी and MA से लोअर होगी। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द इवैल्यूएशन पार्ट। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स को हमने इवैल्यूएट कैसे करना है। क्वालिटेटिव पैरामीटर्स जो है वो भी मैंने आपको समझा दिए थे पिछले वाले ऊपर वाले स्लाइड में। अब मैं ये आपसे डिस्कस करता हूं क्वांटिटेटिव मैटर्स। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है कि क्वांटिटी कैसी है। क्वांटिटी में जैसे आप ये देख सकते हैं, दिस इन येलो इट इज मेंशन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 2 3 4 5। सो 1 से 10 तक 10 मार्कर्स आते हैं जनरली एंड 11 to 20 आर 15 मार्कर्स। सो फॉर इंट्रोडक्शन वी हैव गिवन 1 पॉइंट और 1 मार्क। अब इंट्रोडक्शन जैसा भी लिखा है, अगर हम यहां पर सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, क्वांटिटी का एनालाइज कर रहे हैं पहले, क्वालिटेटिव एनालिसिस हम पार्ट बी में बाद में करेंगे, पहले क्वांटिटी एनालाइज करेंगे। तो इस क्वांटिटी को एनालाइज करने में इंट्रोडक्शन में आपको देना है 1 मार्क अगर लिखा है तो, और नहीं लिखा तो 0। देन कंक्लूजन अगर लिखा है तो 1 मार्क, अदरवाइज 0, या फिर अगर आधा लाइन लिखा है या बेकार सा लिखा है या ऐसे ही लिख दिया है तो आप हाफ दे सकते हैं, या अगर रह गया है किसी का कंक्लूजन लिखना है इस आंसर में तो आप उसको 0 पॉइंट दे सकते हैं। देन वी हैव पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, चाहे तो बार ग्राफ है, चाहे एक वेन डायग्राम है जो कि हम लोग ऐसे बनाते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी करके। तो यहाँ पे आप 1 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ऐसे करके लिख सकते हैं। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस दैट वी यूज टू मेक आवर आंसर्स अट्रैक्टिव एंड राइट इन अ प्रेजेंट आवर आंसर्स इन अ बेटर फॉर्मेट। अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर नहीं लिखा है तो आप इसमें 0 देंगे अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपने यूज नहीं किया है तो। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द सब हेडिंग्स। सो सब हेडिंग जो होती है वो मेन बॉडी का पार्ट होता है, और सब हेडिंग हम 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जनरली कंसिडर करेंगे कि 2 सब हेडिंग्स आप लिखेंगे, 10 मार्क्स वाले में 2 और 15 मार्क्स वाले में 3 और 4 डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस। सो इसीलिए आप ये सब हेडिंग बॉडी 3 और सब हेडिंग बॉडी 4 पर आप एकदम डैश डाल सकते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स वाले में आप जनरली 2 ही लिखेंगे और मोस्टली आपको 2 लिखने का ही रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बड़े सीधे और टू द पॉइंट पूछे जाते हैं। एंड इन ईच सब हेडिंग, हर सब हेडिंग के नीचे आपने 6 पॉइंट लिखने का टारगेट करना है कि मैं हर सब हेडिंग में 6 पॉइंट लिखूंगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 6, और हमने उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है। जितने आपने पॉइंट लिखे हैं उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैक्सिमम मार्क्स हो गए 3 फॉर सब हेडिंग 1 एंड नेक्स्ट अगेन 3 मार्क्स फॉर सब हेडिंग 2। सो 10 मार्क्स वाले में जो 2 सब हेडिंग्स होंगी आपकी बॉडी के अंदर, आपने उसमें 6 पॉइंट लिखने हैं, तो 12 पॉइंट का आपको टारगेट करना है 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए। अभी हर एक क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो बात हम समझते हैं, वो बात किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होती है एग्जाम हॉल में हर क्वेश्चन में 12 पॉइंट्स लिखना, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 12 पॉइंट्स तक पहुंच पाएं। या अगर आप 4 पॉइंट्स पर पहुंच रहे हैं तो 8 पॉइंट्स लिख सकते हैं, फिर आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं 3-4 पॉइंट। तो यू विल ट्राई टू कीप योर पॉइंट्स क्लोजर टू 11 और 12, तो वो आपको एक अच्छा रिटर्न देगा मेंस एग्जाम में। देन ओवरऑल इंप्रेशन,
जैसे कि नीटनेस है, क्लीनिनेस है पेपर में, हैंडराइटिंग अच्छी है, लेजिबल है, डिफिकल्टी तो नहीं हो रही कोई चीज पढ़ने में, बहुत ज्यादा कटिंग तो नहीं है, हर दूसरा शब्द भी तो कटिंग में नहीं आ रहा है, वो सारी चीजें आप 1 नंबर दे सकते हैं अगर वो सारी चीजें ठीक है तो ओवरऑल इंप्रेशन का। और फिर ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये सारी चीजें देने के बाद मार्क्स आएंगे, उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपको एक मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पर। जैसे सपोज कीजिए आपको यहाँ पर मिल गए, अज्यूम करते हैं हमने इंट्रोडक्शन भी लिखा था, हमने कंक्लूजन भी लिखा था, हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया था, और हमने सब हेडिंग भी दे दी थी दोनों, और दोनों सब हेडिंग में हमने 6-6 पॉइंट भी लिख दिए थे, और ओवरऑल इंप्रेशन भी हमारा अच्छा है। तो सपोज करते हैं एक बार 100% हमने लिख दिया, तो हम इसको 10/10 नंबर दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बड़ा एनालाइज करके बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे टॉपर्स आंसर शीट्स को और आंसर्स और मार्कशीट्स को हम लोग जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, तो हम जो 10 मार्क्स आया है हमारा, सपोज कीजिए जो भी टोटल आता है आपका पूरे 20 क्वेश्चंस का, इस 10 मार्क्स को हम 0.6 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ गया 6। तो आप 6 एक अपना मार्क्स मान सकते हैं कि आप जब सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे तो आपका एक 6 मार्क्स है। ये इंश्योर करता है कि आप 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि 250 नंबर तो किसी के आते नहीं है आंसर शीट में, तो आप जब एक सबसे अच्छा आंसर लिखते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में, अभी क्वालिटी की बात नहीं हो रही है आंसर की, अभी सिर्फ क्वांटिटी की बात हो रही है कि क्वांटिटी मार्क्स पॉइंट्स कितने लिखे हैं आपने और उसके बेसिस पे आपके मार्क्स कितने बनते हैं, तो वो आप 0.6 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर 10 नंबर बनेंगे आपके, अगर 10 मार्क्स को आप 0.6 से मल्टीप्लाई करके 6 मार्क्स पर पहुंचेंगे। ये एक क्वेश्चन के मार्क्स हैं, ऐसे ही आप सिमिलरली अगले क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस evaluate an answer in front of you. This is live evaluation and this is my answer. I had written it while preparing a few years back. और इस आंसर को मैं evaluate करने वाला हूं उन क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स पर जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो हम इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स चेक कर रहे हैं, अभी क्वालिटी वाले पैरामीटर्स नहीं चेक कर रहे हैं हम इसमें। सो क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स में सबसे पहले तो 1 मार्क्स हम दे देते हैं कि इसमें इंट्रोडक्शन लिखा गया है, ठीक है। सो दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट ट्रिब्यूनल्स. Tribunals in India have not just replicated some of the problems that our judiciary suffers from, but added a few more. Discuss. So this is a 10 marker question and it has to be answered in 150 words. So introduction लिखा है हमने, 1 पॉइंट उस इंट्रोडक्शन का हो गया क्वांटिटेटिव वाले एस्पेक्ट्स में। सब हेडिंग लिख दी, सब हेडिंग 1। देन वी हैव 4 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे मैंने। Tribunals replicating the problems of judiciary, delay in cases, costly procedure, low infrastructure and vacancies. So यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स लिख दिए, उसको मैंने हाफ के फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था सब हेडिंग्स वाले पॉइंट्स को। सो यहाँ पर 2 मार्क्स हो गए एक सब हेडिंग के। नेक्स्ट वी हैव सब हेडिंग नंबर 2। सो न्यू प्रॉब्लम्स दैट हैव गॉट एडिड, जो ट्रिब्यूनल्स में न्यू प्रॉब्लम्स ऐड हो गई हैं जुडिशरी के ऊपर, ओवर एंड अबव द व्हाट प्रॉब्लम जुडिशरी हैड, जो कि क्वेश्चंस की कोर थीम है वो पूछा गया है। सो न्यू प्रॉब्लम्स दैट हैव गॉट एडिड आर 1, 2, 3। सो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, तो इन 3 पॉइंट्स को आप हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड यू विल बी लेफ्ट विद 1.5। अभी यहाँ पर केवल क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन चल रहा है, क्वांटिटी का इवैल्यूएशन हो रहा है सिर्फ। सब हेडिंग भी लिखी गई है, तो 2 सब हेडिंग्स जो होती हैं 10 मार्कर्स में, वो लिखकर मैंने इसमें पॉइंट्स लिख दिए हैं, और जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई करके आपके सामने यहाँ पे पॉइंट्स दे दिए हैं। एंड आई हैव आल्सो रिटन 2 पॉइंट्स इन द वे फॉरवर्ड। सो 2 को भी हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 12 पॉइंट्स या 6-6 पॉइंट्स हर एक सब हेडिंग में नहीं मिल पा रहे हैं, सो यू कैन राइट सर्टेन सजेशंस और वे फॉरवर्ड, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो 1 पॉइंट वे फॉरवर्ड का हो जाएगा। और कंक्लूजन इसमें मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया वे फॉरवर्ड से, Hence to provide effective justice the citizens, जो भी कंक्लूजन लिखा है उसका आप 1 पॉइंट ऐड कर सकते हैं। सो ये एक तरीके से हो गया क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। सो 1, 2, 3, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में 6.5 मार्क्स आते हैं, जो कि आउट ऑफ 10 है, और जिसको हमें 0.6 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है टू रीच टू आवर करेक्ट मार्क्स। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। सो 6.5 इंटू 0.6, सो दिस विल कम अप्रोक्सीमेटली 4। सो अब यहां पर आ गया 4 आउट ऑफ 10। ये हो गए मेरे क्वांटिटेटिव मार्क्स। क्वांटिटी वाइज मार्क्स कितने हैं कि मैंने काम पॉइंट्स पूरे लिखे हैं नहीं लिखे, कंक्लूजन इंट्रोडक्शन लिखा है और
अपना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने यूज नहीं किया, तो मैंने उसमें कोई मार्क्स नहीं दिया, जैसा आप अभी इस इवैल्यूएशन में देख सकते हैं। सो ये हो गए क्वांटिटी वाले मार्क्स। अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव पैरामीटर्स को। अभी हमने पार्ट ए में क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स को देखा, समझा, और उसका मैंने एक आंसर आपको इवैल्यूएट करके दिखाया। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस वही 5 पॉइंट्स हैं जिनकी बात मैं आपको पहले करके दिखा रहा था। बेसिक एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स, द एबिलिटी टू एनालाइज यूजिंग द पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स, रेलेवेंट, मीनिंगफुल एंड सकिंट आंसर्स एंड मेयर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप लिखेंगे, सिर्फ आप डेटा और फैक्ट्स लिखेंगे विदाउट सब्सटैंशिएटिंग योर आर्ग्यूमेंट, उसका आपको -1 या -1.5 करना है। 1 10 नंबर वालों में, 1.5 15 नंबर वाले क्वेश्चंस में। और ये जो 4 फैक्टर्स हैं, बेसिक एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका अगर आप 10 नंबर वालों में 100% अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस एस्पेक्ट में, तो आपको 3 मार्क्स देने हैं, 15 वालों में 4.5 देने हैं। और सिमिलरली हर एक पैरामीटर्स के लिए ऐसा ही करना है। लेकिन आप ये पाएंगे कि कभी भी आपको 3 मार्क्स नहीं देने चाहिए अपने आंसर्स इवैल्यूएट करते समय, क्योंकि हमेशा एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट रहता है और बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहना भी एक अच्छी बात नहीं है। आपका इंप्रूवमेंट का स्कोप बना रहना चाहिए। तो आप इसमें मैक्सिमम 1 से 1.5 या एट मैक्स 2 दे सकते हैं, पर 2 भी आप एक 20 क्वेश्चंस में से 2 या 4 आंसर्स में दे पाएंगे एट द मैक्स। देन ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स, जिन सब इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसका आप 3 नंबर दे सकते हैं अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उनमें और 4.5 दे सकते हैं आप 15 मार्क्स वालों में। देन एबिलिटी टू एनालाइज, अगर कोई चीज आपसे पूछी गई है तो आपको उसको एनालाइज करना है वेरियस एस्पेक्ट से, मल्टी डायमेंशनल आपको अपने पॉइंट्स लिखने हैं, इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेजेस दिखानी है उस एक कोर एस्पेक्ट को लेकर जो पूछा गया है। और अगर आप अच्छा एनालाइज कर पा रहे हैं तो आप उसको 3 मार्क्स देंगे, 3 इज द 100% स्कोर, और 15 मार्क्स वालों में 4.5 देंगे। अगर आपका पॉइंट्स का जो डायमेंशन है वो एक ही डायमेंशन के पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ इकोनॉमी के ही पॉइंट्स आपने लिख दिए हैं 4, तो आप उसमें बहुत ज्यादा मार्क्स एनालिसिस में अपने आप को नहीं दे सकते। आप उसमें एट द मैक्स हाफ और 0.75 मार्क्स जो है वो देंगे, क्योंकि आपको जो पॉइंट्स लिखने हैं सब हेडिंग्स में वो भी वेरियस टाइप ऑफ डायमेंशन से लिए गए होने चाहिए। देन रेलेवेंट, मीनिंगफुल एंड सकिंट आंसर्स अगर आप लिखते हैं तो आपको 1 मार्क्स देना है 10 नंबर वालों में और 1.5 मार्क्स देना है 15 नंबर वालों में। तो इस तरीके से 3 + 3 + 3 + 1 ये 10 मार्क्स की मार्किंग हो जाएगी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में, और 4.5 + 4.5 + 4.5 + 1.5 ये आपकी 15 मार्क्स की मार्किंग हो जाएगी 15 मार्क्स वालों में। और ये जो मार्किंग टोटल आएगी 10 मार्क्स वालों की या 15 मार्क्स वालों की, ये सारे पेपर की मार्किंग को आपको 0.7 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.7 के फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये फैक्टर भी जो है वो बहुत सारे मेंस के जो मार्कशीट हमारे पास आती है यूपीएससी की, उसको एनालाइज करके बनाया गया है कि अगर आप सारे क्वेश्चंस का ही बहुत अच्छा भी जवाब दे के आते हैं तो भी आपके पास 130-140 के अराउंड ही मैक्सिमम स्कोर जो है वो देखने को मिलता है, उससे ज्यादा स्कोर देखने को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ये वाले जो पैरामीटर्स है हमारे 0.6 और 0.7 से मल्टीप्लाई करना, ये साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे हमने यूज किए हैं, जो आपको एक क्लोज टू द यूपीएससी मार्किंग पैटर्न ले जा सकते हैं। सो अभी हम वापस अपने उसी आंसर्स पर चलते हैं जो हमने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में चेक किया था, ट्रिब्यूनल वाला। और अब इस आंसर को हम लोग इवेल्युएट करेंगे क्वालिटेटिव टर्म्स में कि इस आंसर की क्वालिटी कैसी है, अच्छा लिखा गया है या अच्छा नहीं लिखा गया, वो देखना है हमें इस आंसर्स में। और जो बेसिक एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स है, एबिलिटी टू एनालाइज द गिवन कोर कॉन्सेप्ट है, और रेलेवेंट, मीनिंगफुल एंड सकिंट आंसर्स हैं, उसके बेसिस में हमें इसको इवेल्युएट करना है। क्वेश्चंस हम लोग इसमें देख चुके हैं, ट्रिब्यूनल वाला ही क्वेश्चंस है। Tribunals in India have not just replicated some of the problems that our judiciary suffers, but added a few more. Discuss. So यहाँ पर discuss एक interrogation word है जिसको मद्देनजर रख के हमें अपना आंसर लिखना है। So आंसर लिखता हूँ, this is my answer. Article 323A establishes administrative tribunal and Article 323B establishes tribunal for other purposes, for example income tax, natural gas, etc. So ये दिखाता है कि जो ट्रिब्यूनल पूछा गया है उस ट्रिब्यूनल का जो ओरिजिन है वो हमने बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में से
ट्रिब्यूनल का जो रेलेवेंट आर्टिकल है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक बेसिक नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की, प्लस एक मीनिंगफुल इंट्रोडक्शन लिखा गया है। ट्रिब्यूनल रेप्लिकेटेड द प्रॉब्लम्स ऑफ जुडिशरी। अब जो कोर डिमांड थी क्वेश्चन की वो यहाँ पर मैंने सीधा सब हेडिंग में एड्रेस करी है कि जो ट्रिब्यूनल है वो रेप्लिकेट कर रहा है जुडिशरी के प्रॉब्लम्स। सो देयर आर डिले ऑफ केसेस, और यहाँ पर एक फैक्ट भी लिखा है, और फैक्ट को मैंने यूज किया है अपना आर्ग्यूमेंट जो कि डिले ऑफ केसेस है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, कि मोर देन 20,000 केसेस आर पेंडिंग इन द कैट, दैट इज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड अदर ट्रिब्यूनल्स, दैट दिस इज एज पर द CAG रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि जो डेटा है वो भी वाइडली नोन कैग रिपोर्ट में से दिया गया है और सब्सटैंशिएट किया गया है अपने पॉइंट को, अपने आर्गुमेंट को एग्जांपल के साथ। देन कॉस्टली प्रोसीजर्स, लॉयर बीइंग द एसेंशियल फॉर केसेस इन ट्रिब्यूनल्स, जो लॉयर्स है उनकी जो फीस है, उनकी जो हाई फीस है उसको पॉइंट आउट किया गया है। कॉस्टली प्रोसीजर हमने यहाँ पे लिखा है। लो इंफ्रास्ट्रक्चर, सो वी हैव लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर विद ट्रिब्यूनल्स, इसमें इतना ज्यादा डेटा नहीं दिया गया है तो इसमें मार्क्स कटने चाहिए, यहाँ पर हम लोग पूरे मार्क्स नहीं दे सकते। वैकेंसीज, लार्ज वैकेंसीज आर देयर इन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये चीज हाईलाइट की गई है। आगे हम देखते हैं, देयर आर न्यू प्रॉब्लम्स दैट हैव गॉट एडेड। So there are no independence as the executive appoints the judges. Government is the largest litigant in the tribunals. मतलब government, the executive is appointing the judges in the tribunals and government is the largest litigant in the tribunals. So ये कहीं ना कहीं principle of natural justice के ऊपर क्वेश्चन कर सकता है। So यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंस जो है वो इंडिपेंडेंस जो कि हमारे जुडिशरी के जजेस की जो इंडिपेंडेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन से इंश्योर होती है, ऐसा कोई सिमिलर प्रोविजंस ट्रिब्यूनल के केसेस में लैक करता है, इसलिए ये चीजें यहाँ लिखी गई हैं। डोमिनेशन ऑफ जुडिशियल मेंबर्स, सो ये क्रिटिसिज्म भी है ट्रिब्यूनल्स के रिगार्डिंग जो हम पढ़ते हैं, दैट द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग द स्पेशल नॉलेज या एक्सपर्ट्स सॉ लिमिटेड सक्सेस इन द ट्रिब्यूनल्स। तो जो जुडिशरी के मेंबर्स हैं वही काफी बार ट्रिब्यूनल्स में हम लोग अपॉइंट करते हैं, इसलिए वहां पर जो है स्पेशल नॉलेज या एक्सपर्ट जो है उनका एक लिमिटेड प्रेजेंस रहता है। Then there is low implementation of tribunals orders by the departments. So the orders they get challenged in the high courts, and I have mentioned the L. Chandra Kumar case of the 1997 of the Honorable Court. So यहाँ पे जजमेंट मेंशन की गई है, केस मेंशन किया गया है, जो कि एक गुड पॉइंट है जो कि हमें इस आंसर्स में, ट्रिब्यूनल वाले आंसर्स में एल चंद्रा कुमार केस यहाँ पे हमें लिखना है। इस केस के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया गया था कि जो ऑर्डर्स होंगे, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या जो भी सारे ट्रिब्यूनल्स हैं उनके ऑर्डर चैलेंज किए जा सकते हैं हाई कोर्ट्स में। सो देयर इज effective justice to be provided to citizen in various matters, overall tribunal functioning in the need of the hour, and the way forward has been mentioned that form National Tribunal Commission to appoint the members and timely disposal of cases following the principles of natural justice. So अभी principles of natural justice के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड यूज किया है मैंने। पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड जो है, पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड जो है वो यूज किए गए हैं। नेचुरल जस्टिस हुआ, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन हुआ, ये एक इनोवेटिव आइडिया है, ये एक इनोवेटिव सजेशन है जो वेरियस कमीशंस ने दिया है, वो इंक्लूड किया गया है, वेदर बी इट गिविंग द नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन एंड द टाइमली डिस्पोजल ऑफ केसेस। तो अब यहाँ पे अगर हम इवेल्युएट करें, सो बेसिक एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग में मैं इस क्वेश्चन को दूंगा 1.25/3, क्योंकि हमें ये इंश्योर करना है कि हम कभी भी 100% करेक्ट नहीं हो सकते। तो 3 का जो पैरामीटर था वो तो एक्सेप्शनली ब्रिलियंट आंसर्स में आप देंगे, और एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट रहना चाहिए अपना, क्योंकि अभी हम प्रिपरेशन के फेज में है तो हमारा एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बना रहना चाहिए। देन ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स में आई विल गिव इट 1.5/3, जो कि इसने हाई कोर्ट का जजमेंट भी लिखा है। देन ये भी लिखा है कि कॉस्टली प्रोसीजर्स हैं, वैकेंसीज हैं, एनजीटी हाईलाइट किया गया है वैकेंसीज के लिए, एंड डिले ऑफ द केसेस भी लिखा है। सो वेरियस पैरामीटर्स से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कॉस्ट बेस्ड पैरामीटर्स हो, उनसे इन क्वेश्चन को इवैल्यूएट किया गया है। देन इन द एबिलिटी टू एनालाइज आई विल गिव 1/3, क्योंकि यहाँ पर एक चीज मिसिंग है जो कि जुडिशरी के साथ कंपैरिजन है वो किया जा सकता था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटिंग जो आर्टिकल्स हैं वो लिखे जा सकते थे, वो चीज यहाँ पर
मिसिंग है। और रेलेवेंट, मीनिंगफुल एंड सेकेंड आंसर्स में आई विल अगेन गिव इट 0.75 आउट ऑफ 1, जो कि हमने डिसाइड किया था कि रेलेवेंट, मीनिंगफुल एंड सेकेंड आंसर्स में हम लोग 1 देंगे और बाकी पैरामीटर्स में हम 3 देंगे। सो ये हो गए 10 मार्क्स। एंड व्हाट इज द टोटल अबाउट 10 मार्क्स which this answer has scored is 1.25, 2, 3, 3.5, 4.5. So 4.5 out of 10. और अब इस 4.5 out of 10 को हमें मल्टीप्लाई करना है 0.7 के फैक्टर से। So 4.5 into 0.7, 4.5 मेरे एक्चुअल मार्क्स है जो मैंने सेल्फ इवैल्यूएशन करके दिए, और उसको 0.7 से मल्टीप्लाई करके 3 या 3.5 आता है। वैसे तो 3.15 आएगा, बट इसको आप 3 या 3.5 जो है वो कंसिडर कर सकते हैं अपने इवैल्यूएशन के लिए, अपनी कैलकुलेशन के लिए। और अगर आप और स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो वी कैन टेक इट एज 3.15 ओनली। तो 4.5 इंटू 7, 3.15, ये हो गया 3.15 पहले क्वेश्चन का। और जो हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आया था वो आ रहा था 4 के आसपास। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको क्वालिटेटिव पैरामीटर से भी इवैल्यूएट करना है और क्वांटिटेटिव पैरामीटर से भी इवैल्यूएट करना है। तो आप पाएंगे कि योर स्कोर इन द मेंस एग्जाम दैट वुड बी नियर टू द क्वालिटेटिव पैरामीटर। सो क्वालिटी ऑफ द आंसर इज इंपॉर्टेंट। जितना क्वालिटी का आप आंसर लिखेंगे वो चीजें आपको हेल्प करेंगी हायर मार्क्स स्कोर करने में। तो ये एक इवैल्यूएशन का एक पैरामीटर था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फर्दर और हम जब सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में और डिस्कशन करेंगे इसी वाले सीरीज में, तो मैं आपको और भी वेरियस एस्पेक्ट्स बताऊंगा टू इंक्रीज योर मार्क्स, टू इंप्रूव योर मेंस परफॉर्मेंस। और अगर आपको मेंस के रिगार्डिंग अगर इवैल्यूएशन के लिए, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट के लिए हेल्प चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर हियर टू हेल्प यू विद द सेल्फ इवैल्यूएशन। वी विल एक्सप्लेन यू द प्रोसीजर, और यू कैन एनरोल फॉर द टेस्ट सीरीज दैट विल बी गिवन, and such a detailed report will be provided, and this report will ensure that you improve your mains marks and achieve your dream of appearing in the interview and clearing the civil service. Thank you so much.